Hello students, welcome again in this session of topology. We will continue our topic of countability axioms. We have to prove some more theorems on this topic. Today's topic is Landlof space and Landlof theorem. So let us just see first the definition of Landlof space. कि Landlof space क्या होता है? A topological space X is said to be Landlof space if every open cover of X has a countable subcover. तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लैंडलॉफ स्पेस कहते हैं कब? जबकि उसका हर एक ओपन कवर एक काउंटेबल सब कवर को रखता है. तो व्हाट डू वी मीन हियर बाय ओपन कवर? ओपन कवर का कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी नोन टू यू. आप जानते हैं क्योंकि you have studied about the compactness of spaces. वहाँ पर जो कंडीशन होती है कॉम्पैक्ट स्पेस में, वो कंडीशन ये होती है कि a metric space is said to be compact space if every open cover of that has a finite subcover. और यहाँ पर जो कंडीशन है वो है काउंटेबल सबकवर. तो ओपन कवरिंग के बारे में आप जानते हैं, बट लेट मी जस्ट रिकलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर. कि वहाँ पर X का हमें कोई एक आर्बिट्ररी कलेक्शन अगर हम ले ओपन सेट्स का जो X को कवर करे. इट इज लाइक दैट कि अगर हम कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लें, अगर हम यहाँ पर कोई GI हम ले कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ X एंड इट कवर्स दैट इज GI. सो जो अगर X को कवर करे, कवरिंग ऑफ X बाय ओपन सेट्स, सो इट इज कॉल्ड ओपन कवर. तो यहाँ पर ओपन कवर के लिए कंडीशन है कि if every open cover of X has a countable subcover then it is known as Landlof space. तो यहाँ Landlof थ्योरम करेंगे हम काउंटेबिलिटी एग्जाम में. Every second countable space is Landlof space. यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि हर एक सेकंड काउंटेबल स्पेस Landlof स्पेस होता है. मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ. सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि if it has a countable basis, a topological space is said to be second countable if it has a countable basis. तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि every second countable space is a Landlof space. और इस थ्योरम को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि if Xt is a second countable space and if a non-empty open set G is represented as a union of class Gi of open subsets of X, then G can be represented as a countable subclass of Gi. तो यहाँ इस तरीके से भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम कोई एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें जी, जो कि एक ओपन सबसेट्स की क्लास से ही रिप्रेजेंट हो रहा है या कवर हो रहा है, तो वो एक उसकी काउंटेबल सब क्लास से भी कवर होगा. इट मींस इट्स ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर. हम इस तरह से भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं. सो नाउ इट इज प्रूफ ऑफ द थ्योरम. वी हैव कंसीडर्ड हियर Xt is a second countable space. Xt is a second countable space here. Then definitely there exists a countable basis. Say this basis is beta. Beta उसका basis है. Beta is represented as B1, B2, B3 and so on. ये मान लो उसका countable basis है X का. अब हमने consider किया है एक open set G be an open subset of X and definitely non-empty open set हमने consider किया है G यहाँ पर. और साथ में हमने लिया है G का ओपन कवर. हमने क्लास लिया है GI का. ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है जो कि G का ओपन कवर है. G is represented as a union of elements of this collection of open sets. So G is equal to union of GI here. Now we have to show that कि it has a countable subcover. तो हमें ये प्रूव करना है कि G can be represented as a countable सब collection of this collection. ये हमें यहाँ प्रूव करना है. Now we have considered here an arbitrary element X belonging to G. Let X belongs to G. तो X अगर G में है, G is union of Gi, तो definitely it belonging to some element Gi for some I. अब now Gi is open. Gi open set है, ये class of open sets है, तो Gi यहाँ open है और बीटा है इसका basis. तो by definition of basis there exists a basis element. हमने वो basis element Bn से लिखा है कि Bn belonging to beta such that X belonging to Bn is subset of Gi. तो हमने यहाँ पर क्या किया, G का एक एलिमेंट X लिया और उसके लिए हमने
GI लिया है और उसके लिए हमने फाइंड आउट किया एक बेसिस एलिमेंट Bn, तो x belonging to Bn is subset of GI. Now we repeat this process for another element of G like Y, then we can find another Bn या Bk. फिर हम कोई तीसरा एलिमेंट ले सकते हैं, तो हम G का हर एलिमेंट लेते हैं. रिपीट दिस प्रोसेस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x belonging to G. तो हमें क्या मिलेगा? देन वी हैव अ सब क्लास. तो हमें इस तरह के बेसिस एलिमेंट यहाँ मिलेंगे. जी के हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ बेसिस एलिमेंट मिलेंगे एंड वी हैव कलेक्टेड ऑल दोज एलिमेंट इन द सब क्लास बीटा 1. तो बीटा 1 इज डेफिनेटली सब क्लास ऑफ बीटा, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट हम यहीं से ले रहे हैं बीटा से. इट इज सब क्लास ऑफ बीटा एंड सिंस बीटा इज काउंटेबल सो दिस सब क्लास इज आल्सो काउंटेबल. और G क्या होगा? क्योंकि हम we have repeated for every element of G, so G can be represented as union of B belonging to beta 1. तो G यहाँ पर ये जो काउंटेबल एक कलेक्शन हमने लिया है और उसके यूनियन से G यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है. तो ये तो हो गया कि यहाँ पर एक काउंटेबल सब कलेक्शन है, बट वी हैव टू प्रिपेयर काउंटेबल सब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सबसेट्स ऑफ दिस क्लास GI. तो now it is clear that every element of beta 1 is contained in sub GI. जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि बीटा 1 हमने जो ये कलेक्शन बनाया वो इसी तरह के एलिमेंट से बनाया है. तो every element of beta 1 is contained in sub GI. तो we select those GI, हमने वो GI सिर्फ सिलेक्ट कर लिए हैं इस कलेक्शन में से which contains element of beta 1. We reverse the process actually. तो हमने यहाँ पर पहले बीटा सिलेक्ट किया, अब हमने पहले B सिलेक्ट किया और अब हमने GI सिलेक्ट किया which contains elements of beta 1, so that selected subclass of GI will be countable definitely, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से सिलेक्ट किया है. तो this class will be countable since beta 1 is countable and this shows, और वो जो countable subclass हमें मिलेगी definitely G will be the union of that subclass. So this shows G can be represented as a union of countable subclass of GI. तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम एक ओपन सेट लें, उसका एक ओपन कवर लें, तो उसका एक काउंटेबल सब कवर भी एग्जिस्ट होगा. बट इफ वी कंसीडर G is equal to X, then definitely every open cover of X has a countable sub cover या will have a countable sub cover. So X will be the Landlof space. So this is the Landlof theorem for second countable space. Every second countable space is a Landlof space. और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, कि एवरी Landlof space is not necessarily a second countable space. To check the converse, you can consider the space RL. RL this space is known as lower limit topological space. So this space is Landlof space, but it is not second countable. So the converse of this theorem is not necessarily true. Now let me prove another theorem, the last theorem of this topic, and that theorem is subspace of every second countable space is also second countable space. This is very short theorem. So we will prove that subspace of every second countable space is also second countable. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि अगर हम कोई सेकेंड काउंटेबल स्पेस लें तो उसका हर एक सब स्पेस भी सेकेंड काउंटेबल होगा. तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर xt हमने कंसीडर किया है, ये हमने लिया है लेट xt बी सेकेंड काउंटेबल स्पेस हमने कंसीडर किया है, और हमने कंसीडर किया है लेट y बी सब स्पेस, ये हमने लिया है यहाँ पर, ये सब स्पेस है x का. तो हमें ये प्रूव करना है कि y भी यहाँ पर सेकेंड काउंटेबल है. इट इज गिवन दैट xt इज सेकेंड काउंटेबल.
ये यहाँ पर दिया है कि ये सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट हैज काउंटेबल बेसिस। सेकेंड काउंटेबल की ये डेफिनेशन होती है कि उसका काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट होता है। तो हमने मान लिया कि बीटा जो है वो काउंटेबल बेसिस है। बीटा को हमने ले लिया है यहाँ पर Bn such that n is equal to 1, 2, 3 and so on. This is countable basis. तो मान लीजिए कि बीटा जो है वो बेसिस है किसका? x का। तो हमें प्रूव करना है कि y का भी एक काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब हमने एक नया सेट बनाया, हमने यहाँ पर लेट y है x का सब स्पेस। तो y का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है? हमें मालूम है कि y के जो ओपन सेट हैं वो x के ओपन सेट्स का इंटरसेक्ट करते हैं हम y के साथ, तो y के ओपन सेट मिलते हैं। तो इन दिस वे वी विल फॉर्म द बेसिस ऑफ y। तो हमने यहाँ पर बनाया बीटा y हमने किस तरह से बनाया? बीटा y हमने बनाया है एवरी एलिमेंट ऑफ बीटा intersects with y, that is Bn intersection y such that n is equal to 1, 2, 3 and so on. So by this construction it is clear that beta y is countable. Since beta is countable, so beta y is countable, so this implies beta y is countable. तो it is clear that it is countable. तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये बीटा y बेसिस है किसके लिए? सब स्पेस y के लिए। ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिस के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? बेसिस के लिए वही कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि हम एक ओपन सेट लेंगे, इस स्पेस में y में ओपन सेट लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट एन एलिमेंट ऑफ बेसिस व्हिच इज होल्ली कंटेन्ड इन दैट ओपन सेट। तो हमने लिया है एक एलिमेंट लेट y